بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم جو ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روح کے ہم سفر کی تھرڈ ایپیسوڈ، اور آپ ففتھ ایپیسوڈ، سوری تھرڈ نہیں ہے ففتھ ہے، سوری۔ اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تھینک یو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ فلوریڈا پہنچنے کے بعد وہ تینوں اپنی اپنی پڑھائی اور کاموں میں بے حد مصروف ہو گئے۔ ان تینوں کی زندگیاں بے حد مصروف رہنے لگی۔ صبح پڑھائی، دوپہر کو ہوٹل کی نوکری اور رات کو پھر ایک اور نوکری۔ ڈیوڈ شام کے وقت کمپیوٹر کورسز کے لیے جاتا تھا اور رات کو پیٹرول پمپ پر جاب کرتا تھا، جبکہ جیمز ایک ہسپتال میں گارڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا اور پارکر ایک بار میں کام کرنے لگا تھا۔ پارکر نے سوزی کو تحفے میں ایک موبائل بھیجا تھا اور وہ روز اس سے گھنٹوں فون پہ بات کرتی۔ ان کی زندگی تیزی سے گزر رہی تھی۔ پارکر اور سوزی کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں پارکر 5 بار کولراڈو گیا تھا، جبکہ ڈیوڈ صرف 2 بار اور جیمز صرف ایک ہی بار آرفنیج جا سکا تھا۔ سوزی نے بھی اپنی لاء کی پڑھائی جاری رکھی۔ وہ آرفنیج کے بچوں کو پڑھاتی اور اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی تھی۔ اینا کی تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری تھیں اور اب اس کا انٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اینا سوزی کے فون سے ڈیوڈ سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ اینا کی محبت ڈیوڈ کی روح تک اتر چکی تھی۔ جب بھی پارکر آرفنیج جاتا، ڈیوڈ آنے کے لیے بے شمار تحفے بھیجتا۔ اینا جب بھی ڈیوڈ سے کسی چیز کی فرمائش کر دیتی، وہ اسے ضرور بھجواتا۔ انہی دنوں مسٹر اینڈرسن کے ایک دوست کی بیٹی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مسٹر اینڈرسن سے کہا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو ان کی نواسی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے تاکہ وہ اپنی ماں کی جدائی کا غم کچھ کم محسوس کر سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ اینا چونکہ ان دنوں نسبتاً پڑھائی سے فارغ تھی، اسی لیے مسٹر اینڈرسن کے کہنے پر وہ مسٹر ایلبرٹ کے گھر چلی گئی۔ اینا پچھلے تقریباً 9 دن سے مسٹر ایلبرٹ کے گھر رہ رہی تھی۔ ڈیوڈ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے فوراً مسٹر اینڈرسن کو فون کیا۔ مسٹر اینڈرسن، آپ نے اینا کو کسی کے گھر بھیجا ہے؟ مسٹر اینڈرسن پہلے تھوڑا چونکے، پھر بڑی نرمی سے جواب دیا، ہاں، وہ میرے دوست ہیں مسٹر ایلبرٹ، بہت اچھے انسان ہیں، بس کچھ دنوں کے لیے بھیجا ہے، چھوٹی بچی کی وجہ سے بھیج دیا ہے۔ ڈیوڈ نے ان کی پوری بات سنی، پھر نہایت ہی احترام سے کہا، مسٹر اینڈرسن، آنا خود ایک چھوٹی بچی ہے، آپ کو کسی اور کو بھیجنا چاہیے۔ مسٹر اینڈرسن نے ڈیوڈ سے ذرا سخت آواز میں کہا، آنا میری بیٹی جیسی ہے۔ ڈیوڈ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیوں اس کے باپ بن رہے ہو۔ اینا کی بات سن کر ڈیوڈ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، مسٹر اینڈرسن، آنا مجھے بہت عزیز ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آنا کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں آنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آنا کے بغیر میری زندگی کا تصور بھی نہیں۔ مسٹر اینڈرسن، کیا آپ میری اور اینا کی شادی کی اجازت دیں گے؟ مسٹر اینڈرسن، جو بڑی حیرت سے ڈیوڈ کی بات سن رہے تھے، بول اٹھے، ڈیوڈ، مجھے لگتا ہے مجھے ایک میرج بیورو بھی کھول لینا چاہیے۔ ان کی بات سن کر ڈیوڈ چپ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد مسٹر اینڈرسن کے زوردار کہکے کی آواز آئی۔ ڈیوڈ نے فوراً پوچھا، مسٹر اینڈرسن، تو کیا آپ مان گئے؟ ہاں، میں بالکل، مگر پہلے تم یہاں آ کر میرے اور میڈم مارگریٹ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہو گے، پھر میں کچھ سوچوں گا۔ پارکر کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ فوراً بولا، آف کورس مسٹر اینڈرسن، میں جلدی آؤں گا، لیکن ابھی پلیز آپ اینا کو بلوا لیں۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، میں بلوا لیتا ہوں مائی سن۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اوکے، گڈ بائے۔ اینا، جو اس گھر کی چکا چوند، قیمتی فرنیچر، بہترین سجاوٹ، قسم قسم کے لذیذ کھانے اور گھر کے باہر کھڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں دیکھ کر
अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। मिस्टर एंडरसन ने आना को बताया कि वो वापस आ जाए। मैडम मार्गरेट चाहती हैं कि तुम वापस आ जाओ बेटा। मगर एना ने फौरन इनकी बात सुनकर कहा, नहीं मिस्टर एंडरसन, मैं ठीक हूँ। नैन्सी मुझसे बहुत अटैच हो गई है। मुझे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज आप मैम को समझा दें, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इनको मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मिस्टर एंडरसन पहले तो इसकी बात पर चौंके, फिर सोचा कि ऑर्फनेज के एक जैसे माहौल में रहने के बाद इसको थोड़ा चेंज मिला है, शायद इसीलिए वो खुश हो रही है। लेकिन उन्होंने कुछ लम्हों बाद फिर से कहा, डेविड की कॉल आई थी, वो भी तुम्हारी फिक्र में परेशान हो रहा था। एना ने इनकी बात सुनी, फिर एक नज़र सामने देखा जहां नैन्सी के साथ बैठे मिस्टर सैमुअल उसी को देख रहे थे। इनकी नज़रों में एक अजीब सा सुरूर था। कहीं ना कहीं एना को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वापस फोन की तरफ मुतवज्जा हुई। आप कह दें डेविड को मैं ठीक हूँ, आप भी ज़्यादा परेशान ना हो। ओके बाय। मैंने पहले मिस्टर एल्बर्ट से बात की थी, वो शहर गए हैं किसी काम के सिलसिले में। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। ओके मिस्टर एंडरसन, बाय बाय। फोन रखने के बाद वो वापस नैन्सी के पास आकर बैठी। नैन्सी इसी की तरफ मुतवज्जा हो गई। सैमुअल मिस्टर एल्बर्ट का दामाद था। इनकी बेटी ने अपनी पसंद से शादी की थी। बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। जब मिस्टर एल्बर्ट की बेटी जिंदा थी तब भी इसका मुख्तलिफ औरतों के साथ राब्ता था। मिस्टर एल्बर्ट ने इसको अपनी कंपनी में एक ऊंचे ओहदे पर रख लिया था, मगर वहां भी कभी वो अपनी पीए के साथ, कभी स्टाफ की किसी और लड़की के साथ ताल्लुकात बनाता रहता। मिस्टर एल्बर्ट मिस्टर एल्बर्ट अपनी बेटी की बीमारी की वजह से चुप हो जाते। आना जैसे ही वहां आकर बैठी तो सैमुअल कहने लगा, आना, तुम किसी जहान की तुम किसी जहान की शहजादी जैसे लगती हो। तुम्हें किसी महल में होना चाहिए था। तुम तो दिल के बहुत करीब रखने के लायक हो। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। चंद ही दिनों में तुम मेरे लिए बहुत खास हो गई हो। मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ है। चंद ही दिनों में तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो गई हो। तुम मेरी जिंदगी में बहुत देर से आई हो। ये कहकर इसने आना का हाथ पकड़ लिया और इसकी आंखों में बड़ी ही ललचाई नजरों से देखते हुए इसके हाथ की पुष्ट पर एक जोरदार किस किया। फिर इसके हाथ की हथेली को खोलकर इसको चूमने लगा। आना के लिए ये सब बिल्कुल नया था। इसको तो लग रहा था कि इतना अमीर आदमी इसके हुस्न का दीवाना हो गया है। इस दौरान इसको एक बार डेविड का चेहरा याद आया, प्यार से मोहब्बत से देखता हुआ, मगर वो इतना अमीर नहीं था। एना ने सोचा, अगर ये अमीर आदमी इसकी जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। इसने एना के और करीब होते हुए इसके खुले बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, क्या कल तुम मेरे साथ शॉपिंग और डिनर पर चलकर मुझसे दोस्ती का आगाज कर सकती हो? एना ने एक नज़र इसकी आंखों में देखा। सैमुअल ने अपने बाजू इसकी गर्दन में डालकर अपना चेहरा एना के चेहरे के और करीब कर लिया और अपनी नज़रों का फोकस एना के सुर्ख होठों पर कर दिया। एना घबरा कर थोड़ा पीछे हुई। सैमुअल ने इसको थोड़ा दूर होते हुए देखकर फौरन बोला, सॉरी यार, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। एना फौरन से बोली, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। मैं तो वो नैन्सी की वजह से, नैन्सी जो अपने खिलौनों से खेलने में मसरूफ थी। इसको देखकर सैमुअल कहने लगा, मेरी बेटी जानती है कि इसके पापा को कम ही कोई चीज़ पसंद आती है और तुम मुझे बेहद पसंद आ गई हो। फिर इसने सिगरेट जलाई और एक बार फिर से एना को देखने लगा, जो अभी सिर्फ 17 साल की थी। कहने लगा, कम ऑन हनी, बताओ ना, आओगी ना मेरे साथ कल? आना ने इस इनायत पर फौरन हाँ कह दिया। अगले दिन शाम के वक्त सैमुअल एना को
ऐना के साथ शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में आया। ऐना आज से पहले कभी भी ऐसी जगह नहीं आई थी। सैमुअल ने इसको न जाने कितनी शॉपिंग करवाई। वो तो बस हर चीज लिए जा रहा था, ड्रेसेस, फ्रॉक्स, पर्स, ज्वेलरी, मेकअप, कॉस्मेटिक्स की न जाने कौन कौन सी चीजें। ऐना तो सब देखकर हैरान थी कि शॉपिंग के बाद सैमुअल ने इसको शहर के एक बड़े होटल में डिनर के लिए लेकर आया था। इससे पहले ही इस होटल का एक कैबिन बुक करवाया हुआ था। ऐना ने जीन्स की मिनी स्कर्ट के साथ रेड कलर की शर्ट पहनी थी। इस ड्रेस की वजह से इसकी टांगें घुटने से ऊपर तक नजर आ रही थी। सैमुअल तो सर से पांव तक एक जैसी खूबसूरती देखकर ही शदीद किस्म का बेख्तियार हो रहा था। पहले इसने कैबिन का गेट खोला और ऐना को अंदर जाने का कहा। ऐना एक सिटिंग पर बैठ गई, फिर वो इसके साथ ही इसी सिटिंग पर बैठ गया। ऐना ने मुस्कुराते हुए सैमुअल को देखा। सैमुअल ने झट से ऐना का हाथ पकड़ लिया। हनी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, लाइक अ प्रिंसेस, और इसके हाथ को चूम लिया। वेटर दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। फिर सैमुअल ने ऐना की पसंद पूछकर ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद सैमुअल एक बार फिर ऐना की तारीफों के पुल बांधने लगा। कभी इसकी आंखों की, कभी इसके बालों की, कभी गालों की, कभी होंठों की। इस दौरान एक बार फिर ऐना को डेविड का ख्याल आया कि डेविड भी इसकी तारीफें करता था, मगर मिस्टर सैमुअल का अंदाज कितना हसीन था। फिर सैमुअल ने इसके घुटनों पर हाथ रख दिए। ऐना की मरमर जैसी मरमरी टांगों को वो सहलाने लगा। ऐना को न जाने क्या क्या हो रहा था। फिर बेसाख्ता वो ऐना के लबों पर झुका। ऐना तो मानो किसी और ही जहान में पहुंच चुकी थी। सैमुअल के हाथ न जाने ऐना के जिस्म के कौन कौन से हिस्से पर फिर रहे थे। केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ और एक साथ दो तीन वेटर आए, जिनके हाथों में बहुत सारे खाने की डिशेस थी। वेटर खाना रखकर जा चुके थे। मिस्टर सैमुअल ने ऐना को खाने की ऑफर की और इसकी प्लेट में निकाल निकाल कर अलग अलग खाने की चीजें देने लगे। ऐना ने खाना खाया। फिर उन्होंने बेल बजाकर वेटर से आइसक्रीम मंगवाई, जिसको सैमुअल ने अपने हाथों से ऐना को खिलाया। कभी वो इसके मुंह वाली चम्मच पर बची हुई आइसक्रीम को अपनी जबान से चाटता, तो कभी जानबूझकर इसके कपड़ों पर आइसक्रीम गिराकर अपने होठों से खा लेता। ऐना के लिए ये एहसास बहुत मुनफरिद था। अपने से दुगनी मर्द के साथ ये सब कुछ ऐना को सिर्फ इसीलिए अच्छा लग रहा था कि इसके पास बहुत पैसे थे, वो रिच था। डेविड की बचपन से की गई खालिश मोहब्बत आज ऐना के दिल व दिमाग में कहीं भी मौजूद न थी। ऐना को आइसक्रीम खिलाते हुए सैमुअल कहने लगा, मुझे इस आइसक्रीम के साथ एक फ्लेवर और ऐड करके टेस्ट करना है। ऐना ने हैरान होकर कहा, तो कर ले, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। सैमुअल ने एक चम्मच भरकर ऐना की मुंह की तरफ बढ़ाया और फिर इसके होंठों पर झुका। सारी आइसक्रीम अब सैमुअल के मुंह में थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सैमुअल का फोन रिंग हुआ। मिस्टर एल्बर्ट का नाम फोन की स्क्रीन पर झिलमिला रहा था। सैमुअल ने फोन उठा लिया। न जाने उन्होंने क्या कहा था कि सैमुअल के चेहरे की रंगत फौरन उड़ी थी। इसने जवाब दिया, जी डैड, वो मेरे साथ है। नैन्सी की कुछ चीजें लेनी थी, इसलिए मैं इसे मार्केट तक लाया था। जी डैड, बस अभी 10 मिनट में आता हूँ, ये कहकर फौरन खड़ा हो गया और ऐना भी इसके साथ खड़ी हो गई। चलो डार्लिंग, हमें अभी घर पहुंचना होगा, जल्दी चलो। वो बड़े बड़े कदम उठाकर चलने लगा, काउंटर पर कार्ड से पेमेंट की और बाहर की तरफ निकलने लगा। ऐना इससे चंद कदम पीछे थी। सैमुअल ने गुस्से से कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, जल्दी चलो। जी जी कहती हुई वो भागने के अंदाज में इसके साथ बोली। घर पहुंचकर ऐना ने देखा कि मिस्टर एल्बर्ट नैन्सी को अपनी गोद में लिए खड़े थे। ऐना को देखकर अपने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर मौदब सा आकर इनके सामने खड़ा हो गया। जाओ और ऐना को अभी ऑर्फनेज छोड़ कर आओ। ऐना इसी वक्त ड्राइवर के साथ ऑर्फनेज आ गई। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और सब अपने अपने कमरों में थे। सूजी, जो कमरे की खिड़की में खड़ी पार्कर से बातें कर रही थी, ऐना को इस वक्त आता देखकर परेशान हो गई।
ऐना ने बताया कि वो लोग नैन्सी को इसकी दादी के पास छोड़ने जा रहे हैं। ऐना को इस वक्त सिर्फ अपनी शॉपिंग की फिक्र थी जो वो वहीं छोड़कर आ गई थी। अगले दिन मिस्टर एल्बर्ट का ड्राइवर आकर शॉपिंग का सारा सामान और चीजें दे गया। डेविड को पार्कर ने बताया कि ऐना ऑर्फनेज में वापस आ गई है। डेविड ऐना से नाराज था कि वो इसके कहने पर भी वापस नहीं आई थी। डेविड ने ऐना के लिए बहुत सारा सामान खरीदा था जो वो खुद जाकर ऐना को देना चाहता था, पर अब डेविड ने फैसला किया कि वो नहीं जाएगा। पार्कर और जेम्स ने डेविड को बहुत समझाया कि काफी अरसा हो गया है, इसको मैडम मार्गरेट और मिस्टर एंडरसन से भी मिल लेना चाहिए, मगर डेविड फिर भी नहीं गया। डेविड की जिंदगी की ये पहली क्रिसमस थी जो वो बिल्कुल तन्हा था। ऐना ने डेविड को न जाने कितनी बार सॉरी कहा था, मगर डेविड का गुस्सा अभी भी वैसे ही बरकरार था। इधर ऐना जो बार बार डेविड को मना मना कर थक गई थी, गुस्से से कहने लगी, ठीक है, नहीं तो नहीं सही, ऐसा कौन सा कहीं का शहजादा है जो मैं मरी जाऊं इस पर, अब मैं भी नहीं मनाऊंगी, और पैर पटक कर वहां से चली गई। क्रिसमस के 2 दिन बाद पार्कर और जेम्स वापस आ गए। कुछ अरसे बाद ही इन्होंने मिस्टर विल्सन से इजाज़त लेकर एक छोटा सा 3 कमरों वाला अपार्टमेंट किराए पे ले लिया। डेविड को अब एक आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। पार्कर की लॉ अभी भी चल रहा था और जेम्स ट्रेनिंग के लिए जा चुका था। पुलिस महकमे में इसका भी सिलेक्शन हो गया था। घर लेने के कुछ अरसे बाद पार्कर मिस्टर एंडरसन और मैडम मार्गरेट की इजाज़त से सूजी को अपने साथ ले आया था। डेविड फिर भी नहीं गया था, इसको ऐना से नहीं मिलना था। पार्कर और सूजी खुशी खुशी फ्लोरिडा पहुंचे। वो बेहद खुश थे। पार्कर के चेहरे की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी। डेविड इन दोनों का बहुत अच्छा वेलकम किया और सूजी और पार्कर को घर छोड़कर खुद ऑफिस निकल गया। घर में आते ही पार्कर ने दरवाजा बंद किया। सूजी तो पहली बार घर देख रही थी। इसकी खुशी भी इसके चेहरे पर नजर आ रही थी। पार्कर ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, अपने बाजुओं में उठा लिया और कहने लगा, थैंक यू सो मच हनी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे घर वाला बनाने के लिए और मेरी घरवाली बनने के लिए। सूजी पार्कर की बातों पर हंसने लगी। मेरी जान, खुश होना। सूजी ने प्यार से पार्कर का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगी, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम पार्कर, तुम कितने खुश हो? पार्कर सूजी को उठाकर अपने बाजुओं में गोल गोल घूमने लगा और कहने लगा, मैं बहुत 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 खुश हूँ, इतना कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं। फिर सूजी ने इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। पार्कर ने इसका चेहरा देखा। वो शायद अपने आंसू छुपा रही थी। मैं भी इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती। और 2 आंसू इसकी आंख से निकले। पार्कर ने फौरन इसकी आंखों से निकले आंसुओं को अपने होठों से चुन लिया। पार्कर ने इसको आहिस्ता से नीचे उतारा, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत खुशी हो, या शायद खुशबू हो, या शायद सांस हो मेरी, या मेरी धड़कन हो। फिर कहने लगा, मैं क्या कहूँ डार्लिंग, तुम बस मेरे लिए जीने की वजह हो। और इसे उठाकर मुस्कुराते हुए कदम बेडरूम की तरफ बढ़ाकर कहने लगा, स्वीटहार्ट, दिस टाइम इज ओनली फॉर सेलिब्रेशन। वो बेहद खुश थी। डेविड को हर वक्त आने की याद आती। इधर मैडम मार्गरेट की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी और वो डेविड को बहुत याद करती थी। पार्कर और सूजी के बार बार कहने पर बिलाखिर डेविड मान गया कि वो कोलोराडो जाकर मैडम और मिस्टर एंडरसन से जरूर मिलेगा। सूजी के आ जाने के बाद अब इन तीनों को वो घर वाकई एक घर की तरह लगता था। सूजी सुबह पार्कर के साथ यूनिवर्सिटी जाती, फिर पार्कर सूजी को घर छोड़कर अपनी जॉब पर चला जाता। सूजी सारा दिन घर की सफाई, सजावट, गार्डनिंग और खाने पकाने में लगी रहती। सूजी को खाना पकाने का बहुत शौक था। वो हर दिन नई नई रेसिपीज ट्राई करती। कभी खाना अच्छा बनता, कभी खराब, मगर पार्कर इसकी भी इतनी ही तारीफ करता। इट्स टेस्टी स्वीटहार्ट, मैं जानती हूँ पार्कर, आज खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना।
इन दोनों की ये बेलौस मोहब्बत देखकर डेविड को भी ऐना की याद सताने लगती। मिस्टर एंडरसन से बात करने के एक दिन बाद डेविड ने मिस्टर एंडरसन को दोबारा कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ऐना वहाँ खुश है माय चाइल्ड। वो कह रही थी कि इसे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, नैन्सी भी इससे काफ़ी अटैच हो गई है। क्या आपने इसे ये कहा था कि मैंने वापस आने का कहा है? चंद लम्हे वो चुप रहे, फिर कहने लगे, हाँ बता दिया है डेविड माय चाइल्ड। और फिनिश के माहौल से हटकर एक नया माहौल शायद इसे अच्छा लग गया है, इसीलिए वो वहाँ एंजॉय कर रही है। आ जाएगी चंद दिनों में। ओके सर। ओके माय चाइल्ड। डेविड ने फोन बंद कर दिया। 2 दिन बाद मैक्सी ने सूजी को बताया कि मिस्टर एल्बर्ट के दामाद का ड्राइवर आकर बहुत सारा सामान दे गया है। वो दोबारा इससे मिलने और फिनिश भी आ चुका है। 2 बार इससे मिलने और फिनिश भी आ चुका है और आना को बाहर ले जाने की इजाजत भी मांगी है, मगर मिस्टर एल्बर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वो आना को इसके साथ ना भेजें। ये बात आना ने पार्कर को बताई। ऐना को इसके साथ नहीं भेजेंगे, ये बात सूजी ने पार्कर को बताई। पार्कर को सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। वो जानता था कि डेविड ऐना से कितनी मोहब्बत करता है। वो जो अपने बारे में जानकर इतना दुखी हो गया था, सिर्फ ऐना को अपने जीने की वजह समझता है। हाय हे सूजी, तुम ये बात किसी से मत कहना। नहीं पार्कर, मैं किसी से नहीं कहूंगी, मगर मैडम मार्गरेट, मिस्टर एंडरसन और ऑर्फनेज के और भी बहुत सारे लोगों को ये बात पता है। अगर डेविड यहाँ आया तो इसको कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। तुम मत लाना इसको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैडम मार्गरेट अब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। डेविड की मसरूफियत बहुत बढ़ गई थी। एना को तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया था। पार्कर सूजी को लेकर बाय रोड ऑर्फनेज गया था। दोनों ने वहां खूब एंजॉय किया। मैडम मार्गरेट की मोहब्बत इनके लिए बहुत खास थी। उन्होंने कहा, प्लीज एक बार डेविड को भेज दो कि वो मुझसे मिल ले। पार्कर ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैं जाते ही इसको भिजवा दूंगा। जब देखो तब कंप्यूटर में घुसा रहता है, कान से पकड़ कर ले आऊंगा साले को। मैडम मार्गरेट कहने लगी, बेटा तुम कहना, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। वो आ जाएगा। ओके मैडम, मैं कह दूंगा। ये कहकर मैडम मार्गरेट को खांसी का दौरा शुरू हो गया। इनकी तबीयत अब ऐसी ही रहती थी। पार्कर सूजी 10 दिन घूम फिर कर वापस आए। उन्होंने रास्ते से फोन करके भी डेविड को मैडम का मैसेज दिया था, मगर वो कहने लगा, तुम आ जाओगे तो मैं फौरन चला जाऊंगा। डेविड ने सबके लिए गिफ्ट लिए और फिर वो मियामी से कोलोराडो के लिए निकल गया। डेविड सारे रास्ते आना के बारे में सोचता रहा। शायद वो बेहद खुश था। ऑर्फनेज के गेट से अंदर दाखिल होते ही बचपन से लेकर जवानी तक के कई यादें दिल व दिमाग पर सफर करने लगी। वो सीधा मैडम मार्गरेट के रूम में गया। इनके खांसने की आवाज दूर से ही आ रही थी। एना वहीं इनके कमरे में मौजूद थी। वो इनकी कमर सहला रही थी। एना की गुलाबी रंगत अब जर्द हो गई थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। वो थोड़ी कमजोर लग रही थी। इसने एक नजर ऐना को देखा, फिर मैडम मार्गरेट की तरफ बढ़ा। हेलो मैम। उन्होंने फौरन डेविड को गले से लगा लिया। डेविड ने देखा मैडम इस अरसे में बीमारी की वजह से अब काफी कमजोर हो गई थी। ऐना को डेविड ने देखा। हेलो बोलने में डेविड ने पहल की। ऐना ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वो मैडम को देखकर कहने लगी, मैम आपको कोई काम है या मैं जाऊं? नहीं बेटा, तुम विलियम को कहकर डेविड के खाने का इंतजाम करो। ओके कहकर ऐना वहां से चली गई। मैडम मार्गरेट ने मोहब्बत भरी नजरों से डेविड को देखा और नरमी से बोली, डेविड क्या तुम हमसे नाराज थे जो इतना सारा वक्त गुजर गया और तुम एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए? डेविड ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये चाहता था कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के साथ साथ माली तौर पर भी खुद को थोड़ा मजबूत कर लूं। इसीलिए मैं एक साथ 2 जॉब्स कर रहा था। मेरा शेड्यूल इतना मसरूफ और मुश्किल था कि कई कई दिन सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। लेकिन यकीन करें,
एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे आप सबकी याद ना आई हो। मैडम मार्गरेट मुस्कुरा दी। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे जिंदगी की इस भाग दौड़ में तेज चल रहे हैं। खुदा ने चाहा तो तुम बहुत तरक्की करोगे मेरे बच्चे। फिर वो फिर से खांसने लगी। डेविड परेशान होकर इनकी कमर सहलाने लगा। कुछ तौकफ के बाद वो बोली, बेटा, तुमने मिस्टर एंडरसन से एना के लिए कुछ कहा था? क्या अब भी तुम अपनी बात पर कायम हो? डेविड ने मैडम का चेहरा देखा। जी मैम, बिल्कुल। मुझे मिस्टर एंडरसन ने बताया था। मैं चाहती हूँ कि तुम एना को अपने साथ ले जाओ बेटा। एना की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसे बहुत बुखार रहता है। सूजी है ना वहाँ? जी मैम, हम सब साथ रहते हैं। जेम्स ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। क्या आपने एना को डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ बहुत ठंडा मौसम है। हो सकता है कि वो इसीलिए बीमार पड़ रही हो। तो तुम इसे ले जाओ बेटा। जी मैम। मिस्टर एंडरसन कहाँ है? मिस्टर एंडरसन शहर से बाहर गए हैं, डोनेशन वगैरह के सिलसिले में। 2-3 रोज में आ जाएंगे। और क्या हुक्म है मेरे लिए मैम? बेटा, तुम्हारे घर के पेपर ले जाओ। नहीं मैम, मैंने वो घर डोनेशन में दे दिया है। आप इसको बेचकर पैसे ऑर्फनेज के बच्चों पर लगा दीजिए। डेविड की बात सुनने के बाद मैडम बोलने लगी, बेटा, मैंने मिस्टर एंडरसन से कहा था, लेकिन वो कहने लगे कि वो घर तुम्हारे माँ बाप की मेहनत की कमाई का है। तुम्हें इस घर को आबाद करना चाहिए। मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? तुम वहाँ ज़रूर जाओगे बेटा। फिर उन्होंने बेड की साइड दराज से वो एनवलप निकालकर डेविड को दे दिया। डेविड ने इसे अपने बैग में रख दिया। फिर इसने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला। इसमें चंद रुपए थे जो इसने मैडम को दिए। अब आप ये तो लेंगी ना, या ये भी मुझे लौटा देंगी? वो मुस्कुराई। नहीं, ये तो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, ये मैं ज़रूर रखूंगी। अच्छा, अब तुम जाओ, आराम करो। ऊपर कमरा खाली है तुम्हारा। शायद एना ने साफ करवा दिया हो। मैम, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। जॉब मिले अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है हमारे मुल्क की। मैं सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी। मैंने सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी। आपकी तबीयत की वजह से आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड पर आऊँगा। कोई बात नहीं बेटे, ऐना को बोल दो वो भी सामान वगैरह पैक कर ले अपना। ओके मैम। डेविड बाहर आया तो ऐना इसके कमरे में थी, शायद डस्टिंग वगैरह कर रही थी। इसने ऐना का हाथ थामा। क्या हुआ, बीमार हो? ऐना ने जरा नाराजगी से कहा। तुम्हें क्या इससे, मैं मरूं या जीऊं? कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम कब से बीमार हो? कोई बीमार बीमार नहीं हूँ, बस बुखार है, शायद टाइफाइड हो गया है। तुम मेरे साथ मियामी चल रही हो। ऐना ने नज़र उठाकर डेविड को देखा और कहने लगी, मैं कहीं भी नहीं जा रही, समझे तुम? और तुम कितने बड़े मेरे ख्वाह हो मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए ये फजूल दिखावा बंद करो। ये कहकर वो कमरे से निकलने लगी। डेविड ने जोर से इसे अपनी बाहों में भर लिया। वो खुद को छुड़ाने की तागदो में लगी थी, मगर डेविड की गिरफ्त मजबूत थी। डेविड ने इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और दांत पीस कर शदीद गुस्से से कहने लगा, तुम्हें मेरी इतने बरसों की मोहब्बत दिखावा लगती है? मैं दिल व जान से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे पता होता कि तुम बीमार हो तो मैं सारे काम छोड़कर आ जाता। मैम के लिए भी तो आया हूँ ना। एना के लबों से बेसाख्ता सिसके निकली। डेविड ने अपने हाथों की गिरफ्त हल्की की, इसका गाल सहलाया, फिर इसकी पेशानी पर एक बोसा दिया और कहने लगा, तुम मुझे बहुत अजीज हो। हम शादी करेंगे, पहले हम डॉक्टर को दिखा दें एक बार। इसीलिए कहता हूँ लिटिल एना, तुम कल मेरे साथ चल रही हो। अपने सामान बांध लो। चलो शाबाश। अगले दिन सुबह वो दोनों मैडम मार्गरेट से दुआएं लेते हुए मियामी के लिए रवाना हो गए। डेविड, जो जहाज की सीट से पुश्त टिकाए माजी की गलियों में भटक रहा था, अचानक एयर होस्टेस की गूंजती हुई आवाज सुनकर हाल में वापस आया। डेविड की फ्लाइट दोपहर 1 बजे बॉज़मैन से रवाना हुई थी। कई घंटों के सफर के बाद शाम 6:30 बजे जहाज ने ऑरलैंडो नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। जहाज के रुकते ही एयर होस्टेस की आवाज गूंजी,
خواتین و حضرات، آپ کا اورلینڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خوش آمدید ہے۔ مقامی وقت شام 6:30 بج رہے ہیں۔ برائے کرم اپنی سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے اور سیٹ بیلٹ کا نشان بند نہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ سفر کرنے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر خوشگوار رہا ہوگا۔ ڈیوڈ نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی ملاقات بہت خاص لوگوں سے ہونے والی ہے۔ ڈیوڈ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو لیام اور جیمز اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کی نظریں مسلسل آنے والے مسافروں پر جمی ہوئی تھی۔ جو ہی ڈیوڈ ان کی نظروں کے سامنے آیا، لیام کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈیوڈ آواز سنتے ہی ڈیوڈ نے نظر اٹھائی۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے تیز قدموں سے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ہیلو بوائز، جیمز نے آگے بڑھ کر اس سے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ویلکم برو، لیام نے بھی اسے باہوں میں بھر لیا۔ یار، کتنے دن بعد ملا ہے، ڈیوڈ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے بھی تم دونوں کی بہت یاد آتی رہی۔ جیمز نے فوراً اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ لیا۔ چلو، گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ نے ایک آخری نظر ایئرپورٹ کی عمارت پر ڈالی، پھر دونوں کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے تینوں میامی کی مصروف سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پر سوزن نے ڈیوڈ کی پسند کے مزے کے کھانے بنائے تھے۔ پارکر اور سوزن نے ڈیوڈ کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سوزن تو ڈیوڈ کو دیکھ کر بالکل اسی طرح رو پڑی جیسے کوئی بہن شادی کے کئی سالوں بعد اپنے بھائی سے سسرال میں ملنے پر جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ ڈیوڈ نے سوزن کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، یار سوزن، میں نے بھی تم سب کو بہت یاد کیا، اور خاص کر تمہارے ہاتھ کی بنی کوکیز کو۔ پارکر نے بھی ڈیوڈ کو گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم نے میری پرنسس کو بہت انتظار کروایا ہے اور اب آ کر رلا بھی دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں نمی بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھے، اگلی بار جلدی آنا۔ پھر خوشگوار ماحول میں گپ شپ ہوتی رہی اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ لیام تو ہر وقت ڈیوڈ کی گود میں ہی بیٹھا رہا۔ اگلے دن وہ سب پکنک پر نکل گئے، جہاں انہوں نے خوب انجوائے کیا اور باہر ہی کھانا کھایا۔ رات کو دیر سے باربیکیو گرل لگا کر باربیکیو کا اہتمام کیا گیا۔ رات کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ ڈیوڈ ہاتھ میں بیئر کا کین لیے بیٹھا تھا اور سب بہت خوش تھے۔ سب پرانی باتیں یاد کر رہے تھے اور ان باتوں میں سبھی کا ذکر تھا سوائے اینا کے۔ سب جانتے تھے کہ اس کا نام لیا تو ڈیوڈ اٹھ کر چلا جائے گا یا ناراض ہو جائے گا، مگر اس ہنسی مذاق کے دوران اچانک پارکر کی سنجیدہ آواز ابھری، اینا کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے، اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ ڈیوڈ نے چونک کر پارکر کو دیکھا اور پھر حیرت سے سوزین کی طرف دیکھنے لگا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا یہ سچ ہے۔ جواب میں سوزین نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیمز نے ڈیوڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، یار ڈیوڈ، اس نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مگر اس وقت وہ بہت بیمار ہے۔ ڈیوڈ نے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ سوزن اٹھ کر اس کے پاس آئی اور بولی، میں جانتی ہوں تمہیں افسوس ہوا ہے ڈیوڈ، اس نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ تمہاری بے لوث، پاک اور سچی محبت کے ہرگز لائق نہیں تھی۔ تم نے تو اسے اپنے دل کے بہت اونچے مقام پر بٹھا رکھا تھا، پر معاف کر دینے والے کو خدا بھی معاف کر دیتا ہے ڈیوڈ۔ ڈیوڈ جو کرسی پر بیٹھا تھا، پارکر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ڈیوڈ فوراً پارکر کے گلے سے لگ گیا۔ ایسا لگنے لگا جیسے وہ اندر سے مر رہا ہو، جیسے آج سب کچھ ختم ہونے والا ہو۔ وہ پارکر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس سے بے حد محبت کی تھی پارکر، وہ میرے لیے میرے دل کی دھڑکن تھی، میرے جینے کی وجہ تھی، میرے لیے سارے رشتے وہی تھی۔
میں نے اس سے کتنی بار کہا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گا، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سوزن ڈیوڈ کی باتیں سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ ڈیوڈ نے روتے ہوئے تسلسل جاری رکھا، میں نے تم سے کتنی بار کہا تھا کہ میں اپنی فیملی اینا کے ساتھ بناؤں گا۔ میں نے کبھی کسی اور کو اپنے دل میں وہ جگہ نہیں دی جہاں وہ رہتی تھی۔ ڈیوڈ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو جوڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا، پارکر، میں آج بھی اسے یہاں سے نہیں نکال سکا۔ لٹل اینا آج بھی یہاں پوری شان سے موجود ہے، جیسے ایک ملکہ اپنے محل میں رہتی ہے۔ میں نے وفا کی ہے پارکر، بہت وفا کی ہے، پر وہ مجھے بار بار دھوکہ دیتی رہی۔ مجھے اس سے نہیں ملنا، پھر بے وفائی کرنے والی ہے وہ۔ جیمز نے اس کے سر تھپ تھپایا۔ مت رو یار، وقت بہت کم ہے۔ آج شام کو ہی اینا کے ڈاکٹر سے سوزن کی بات ہوئی ہے۔ سارے ٹیسٹ خراب آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے اسپتال میں داخل کروانا چاہیے۔ وہ بیمار تھی، یہ ہم جانتے تھے، مگر اتنے موذی اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ڈیوڈ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور غصے و دکھ کی ملی جلی کیفیت میں کہنے لگا، ابھی کہاں ہے وہ؟ سوزین نے آہ بھر کر کہا، وہ اپنے اسی اپارٹمنٹ میں ہے جو مسٹر وکٹر نے طلاق کے عوض اسے دیا تھا۔ یہ سنتے ہی پارکر کا بلڈ پریشر ایک بار پھر بڑھنے لگا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں غصے سے پھول گئیں، لیکن ڈیوڈ اچانک شدید جذباتی ہو گیا اور چیخ کر کہنے لگا، مجھے نہیں ملنا اس سے، کیوں ملوں میں اس سے؟ وہ رو رو کر بدحواس ہو کر چیخا اور ٹیبل پر رکھا سارا سامان اٹھا کر پھینک دیا۔ میں یہاں نہیں رک رہا، میری محبت کے قاتل ہے، وہ میری محبت کی قاتل ہے۔ اس نے سوزن کے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور آنسوں اور سسکیوں کے درمیان کہنے لگا، سوزن، ہم گئے تھے نا جس دن وہ شادی کرنے والی تھی، تم تھی نا میرے ساتھ؟ کیسے آنکھیں پھیر لی تھی اس نے؟ تم گواہ ہو نا سوزن، میں نے ہاتھ جوڑے تھے اس کے آگے، میں نے کہا تھا کہ میں بڑا گھر لوں گا، میں سب کچھ کر دوں گا، مگر میری لٹل اینا، مجھے مت چھوڑو تم، پلیز، میں مر جاؤں گا۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا میں نے اس کو؟ میں نے بچپن سے اس کا خیال رکھا، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا، اور کس قدر حقارت سے اس نے مجھ سے کہا تھا، وہ ڈیوڈ، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یار، پیار کا مطلب قربانی ہوتی ہے۔ مجھے حاصل کرنے میں تمہاری خوشی ہے، مگر میری خوشی مسٹر وکٹر میں ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے میرے لیے اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دے دی ہے۔ میں ان کو اب اس موڑ پر لا کر نہیں چھوڑ سکتی۔ تم تھی نا سوزن، میں نے کیا کہا تھا یاد ہے تم کو؟ میں نے کتنی محبت سے کہا تھا، میری لٹل اینا، یہ وکٹر اچھا آدمی نہیں ہے، تم جیسی معصوم لڑکی وہ شیطان ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو ڈیوڈ، اب میں وہ معصوم اور بھولی اینا نہیں ہوں جو چاکلیٹ سے مان جایا کرتی تھی۔ دیکھو ذرا مجھے، میری ڈریس کو دیکھو، لاکھوں روپیہ لگایا ہے مسٹر وکٹر نے اس شادی پر، وہ مجھے ہنی مون پر ورلڈ ٹور پر لے جا رہے ہیں۔ کیا تم مجھے یہ خوشیاں دے سکتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم ڈیوڈ، تم مجھے بھول جاؤ، تم اچھے ہو، بہت کیئرنگ ہو، تمہیں کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، مگر میں نہیں۔ ڈیوڈ نے زور سے چیخ کر سوزن سے کہا۔ سوزن میں نہیں بھول پایا اس کے ستم، بس روح نہیں نکلی تھی، باقی ڈیوڈ تو ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ آج جو ڈیوڈ کھڑا ہے نا، وہ ایک مشین ہے، پیسے کمانے کی مشین۔ کہاں ہیں اس کے وہ سارے عاشق، کبھی سیموئل، کبھی وکٹر، کبھی وہ مسٹر ولسن، سب اس کو محبت سے قبر تک دفنا کر آ جائیں گے، مگر میں نہیں، نہیں ہوں میں۔ مجھے اس کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھنا، میرے لیے تو وہ اسی دن مر گئی تھی۔ آنسو بار بار اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور وہ بار بار اپنی ہتھیلیوں اور ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ وہ تینوں بالکل خاموش تھے۔ سوزن کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پارکر نے ڈیوڈ کو گلے لگا لیا اور نرمی سے کہا، ٹھیک ہے میرے دوست، میں تمہارے اس فیصلے کی عزت کرتا ہوں، مت جاؤ، اب ہم کبھی بھی تم سے اینا کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ ڈیوڈ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن ماحول بالکل بوجھل تھا۔ شام کو ڈیوڈ بوزمن کے لیے نکل گیا۔ بوزمن آنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسے پتہ چلا کہ اینا اب نہیں رہی۔ ڈیوڈ نے
तो पहले ही इतना मातम कर लिया था कि अब आंसू भी कम थे और दर्द भी मधुम हो चुका था। डेविड की मसरूफियत अब काम में और भी ज्यादा रहने लगी। सुजन, पार्कर और लियाम इससे मिलने आते रहते और लियाम यहाँ बहुत खुश होता था। इनकी जिंदगी चाहे कितनी ही मसरूफ क्यों ना हो, वो मिस्टर एंडरसन से मिलने जरूर जाते थे। साल में एक ही बार सही, वो बच्चों के लिए कैंडी, खिलौने और कपड़े वगैरह लेकर जाते थे। डेविड काफी डोनेशन देता था। तकरीबन अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो हर साल यतीम खाने भिजवाता था। मैडम मार्गरेट अब नहीं रही थी। मिस्टर एंडरसन अब काफी ज़ईफ हो चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बेसहारा बच्चों के साथ गुजार दिया था और अभी भी इनकी जिंदगी इनके साथ ही गुजर रही थी। डेविड एक बार अपने माँ बाप के घर भी गया था। वो इनके बारे में मजीद जानना चाहता था। तो जी, ये था हमारा 5th एपिसोड जो यहाँ एंड हो गया है। और अगर आप लोगों को मेरा ये नॉवल अच्छा लग रहा है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि हम जो है अब इसका नया बाब स्टार्ट करेंगे जो होगा बाब 2, यानी कि हिस्सा दोयम। और उसमें जो है फिर बहुत आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।